today's lecture is basically about the multiplexer implementation, right? So multiplexer basically हमने बात की थी कि you have a multiple inputs and a single output, right? और उनमें से वो जो मल्टीपल इनपुट्स हैं उनमें से कौन सी वाली इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी, दैट इज बेसिकली डन बाय द मल्टीप्लेक्सर, राइट? और वो किस तरह से होगा, वो दैट इज बेसिकली डन थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्ट लाइंस, राइट? सो हमने जो इससे पहले थोड़ी सी बात की थी, दैट इज बेसिकली अबाउट हाउ this one is a multiplexer and you have multiple inputs, and these multiple inputs are basically uh, derived by the select pins, right? So suppose this one is a basically 2 to 1 multiplexer. So we have two inputs, the one is I0 and the second one is I1, and obviously there is a single output which is Y, and this output is basically selected through the select pins. So as we have two inputs, select pins kitni hongi, it all depends upon the number of the inputs. So if we have a single select pin, then what happens? If we have two inputs, then we require only a single select pin, क्योंकि यही काफी होगी. So if it is a 0, then I0 would be selected. If it is a 1, then I1 would be selected, right? So that is all basically discussed in the previous lecture. So what happens now? Uh, First of all, it is basically represented. A multiplexer is basically shown with the help of like this one, right? So what happens over here? Uh, so this one is basically inputs. Here we have our inputs on the left side, and one select pin that is basically at the bottom, and the right side is the basically output, right? So this is how basically it is represented. So the inside it would be written as a what kind of multiplexer it is. So 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो ओके, बेसिकली दो इनपुट्स हमने शो कर दी और यहाँ पे एक सेलेक्ट पिन शो कर दी और आउटपुट शो कर दी. सो दिस इज बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर, राइट? सो ओके, नाउ वी वांट टू सी हाउ इट वुड बी बेसिकली, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, राइट? सो इसको हम सबसे पहले 2 टू 1 मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करते. 2 टू 1 मल्टीप्लेक्सर को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, let me just do it over here. अच्छा, तो 2 टू 1 मल्टीप्लेक्सर को जब हम इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो हमारे पास आउटपुट पे हमने कहा कि ये हमारे पास एक इनपुट है, the second one input is this one, and now this one is a select pin. वही select pin जिसको हमने invert किया. If it is going to be 0, then I0 की वैल्यू मेरे पास आउटपुट पे आएगी, और अगर ये 1 होगा तो मेरे पास I1 की वैल्यू आएगी. So this is how basically we are going to implement that one, and ultimately this is it is going to be OR over there, right? So अब सिचुएशन क्या है, S की वैल्यू अगर 0 है, then what happens, मेरे पास यहाँ पे परमानेंट 0 आएगा इस सेकंड एंड गेट पे. However, इस एंड गेट की एक इनपुट मेरे पास 0 हो गई, एक इनपुट 1 हो गई, क्योंकि S की वैल्यू 0 है तो वो इन्वर्ट होके यहाँ पे आ रही, सो इट वुड बी 1 ओवर देयर. एंड नाउ इट ऑल डिपेंड्स, मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे मुझे मिलेगा जो भी I0 की वैल्यू होगी. अगर ये 0 है तो इट वुड बी 0 ओवर हियर. अगर ये 0 है तो इट वुड बी 0 ओवर देयर. इफ इट इज a 1, देन इट वुड बी 1 ओवर देयर. सो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे आउटपुट पे I0 की वैल्यू मिल रही है. अब और गेट की प्रॉपर्टी क्या, और गेट क्या कहता है कि कोई एक इनपुट भी 0 हो, कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो आउटपुट पे 1 मिलेगा, ठीक? अब हमने कहा कि ये अगर इनपुट मेरे पास 0 है, देन व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस इनपुट, I0 की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. अगर ये 0 है तो मुझे 0 मिलेगा, अगर ये 1 है तो इट वुड बी 1. सो व्हाट हैपेंस कि व्हाट विल आई गेट एट द आउटपुट, दिस वन वुड बी I0, right? So this is the basic implementation of our
2 to oh again my bad 2 to 1 multiplexer, right? So this one is a 2 to 1 multiplexer, simple circuit. Okay, दो एंड गेट यूज किए, एक कन्वर्टर था जिसको सेलेक्ट पिन के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज हाउ इट basically works. If I want to implement a 4 to 1 multiplexer, then what happens? Okay, we required a 4 AND gates, right? Let me show the implementation of a 4 to 1 multiplexer. So सबसे पहले तो एक चीज ये जरूर नोट कर लेनी चाहिए कि 4 to 1 multiplexer में, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कि आपके पास इनपुट्स कितनी है भाई? इनपुट्स तो हमारे पास 4 है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी I0, I1, I2, I3, राइट? इन इनपुट्स में से कौन सी इनपुट सेलेक्ट होके और आउटपुट पे चले जाए, वो कौन सेलेक्ट करेगा? सेलेक्ट पिन यूज सेलेक्ट करेंगे। और वो सेलेक्ट पिन कितनी होंगी? वो सेलेक्ट पिन होंगी ये जितनी इनपुट्स हैं। इफ दिस वन इज अ 2 raised to power n, then this should be a n, right? So n numbers होंगे। So this one is basically ये 4 है, तो 2 raised to power 2 is 4. So how many select pins you require? You required 2 select pins, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। So it is going to be S0 and S1, right? अब हमने इसका एक वो टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं S0 S1 का। So S0 S1 0 0 है, तो मुझे आउटपुट पे मुझे Y पे क्या मिले? I0 मिले। अगर ये 0 1 है तो मुझे आउटपुट पे I1 की वैल्यू मिले। मुझे ये 1 0 है तो I2 की वैल्यू मिले, और ये 1 1 है तो I3 की वैल्यू मिले। So how it can be implemented? It can be implemented with the help of हमने फिर वही AND गेट लगा दिए। So हर AND गेट की एक इनपुट जो है, it would be a input, it would be a I0, it would be a I1, फिर I2, फिर I3, right? ये तो मेरे पास एक एक इनपुट होगी, कौन सी? AND गेट की, ओके। और ये AND गेट क्या हो रहे हैं? बाद में हमने कहा कि हमें तो बेसिकली इन सब को और कर देना है। सो व्हाट हैपेंस कि दिस इज गोइंग टू बी एक बड़ा सारा आर बना देता हूँ, ऐसे है तो बेसिकली 4 इनपुट का, सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ओके। सो दिस वन इज बेसिकली 4 इनपुट आर गेट। तो ज्यादा ही बुरा बन गया, क्या करें अब। So what happens over here? This is going to be 2 input, 3 input and 4 input, right? ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिल गया? ये 1 मिल गया, आउट y मिल गया, y इज आउटपुट, राइट? अब I0 जो है उसकी एक इनपुट तो हमने यहाँ पे इस एंड गेट पे दे दी। इसके साथ में क्या प्रोवाइड करेंगे? इसके साथ में हमें सेलेक्ट पिन्स देनी पड़ेंगी। वो सेलेक्ट पिन्स क्या होंगी? वो सेलेक्ट पिन्स मैं हर एक पे यहाँ पे ही लिख देता हूँ, S0 S1। भाई S0 क्या होगा? S0 की वैल्यू होगी 0 0, तो इट मींस का जी S0 को भी मुझे इन्वर्ट करना है और S1 को भी मुझे इन्वर्ट करना है, एंड देन दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद दिस एंड गेट। नाउ व्हाट हैपेंस? अगर S0 0 है, S1 0 है, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा? दो इस एंड गेट की इनपुट 0 0 है, नहीं इन्वर्ट हो रही है, तो व्हाट हैपेंस कि दिस वन वुड बी अ 1, दिस वन वुड बी अ 1। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थर्ड इनपुट, और थर्ड इनपुट क्या है? I0, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा? I0। अगर I0 0 है तो मुझे 0 मिल जाएगा, I0 1 है तो मुझे 1 मिल जाएगा, राइट? सिमिलरली व्हाट अबाउट द I1? I1 is basically connected with this AND gate. यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करवाना है, तो S0 should be 0, so इसको इन्वर्ट करके देंगे, जो 0 है it should be inverted। S1 जो है वो as it is without inverted। Now this is basically going to be happen, right? So मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? मिल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे मिल रहा है I1 S0 बार S1, right? और एग्जैक्टली अब सिचुएशन क्या बन रही है? अब सिचुएशन ये है कि S0 बार को तो मैंने 1 कर दिया। जब मेरे पास S0 की वैल्यू 0 होगी और S1 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे ये इस तरह से मेंशन कर देता हूँ, S1 की वैल्यू, S0 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 1, देन व्हाट हैपेंस? यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा?
भाई अगर S1 की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट होके यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिलेगी, तो इस 0 की वजह से मुझे यहाँ पे 0 ही मिलेगा, राइट। हाउएवर जब मैं यहाँ पे जबकि यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, मुझे S1 मिल रहा है जो कि 1 था, S0 क्या था, वो 0 था, और 0 को इन्वर्ट करके हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये भी 1 हो गया, दूसरी इनपुट भी 1 होगी, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थर्ड इनपुट। अगर थर्ड इनपुट 0 है तो मुझे 0 मिलेगा, यानी मुझे आउटपुट पे यहाँ पे I1 मिलेगा, उस सूरत में जब S0 0 है और S1 1, राइट। सेम सिचुएशन ओवर हियर, मैं यहाँ पे I2 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सो व्हाट हैपेंस, I2 को कनेक्ट कर दिया, S0 और S1, अब S0 को मैंने एज इट इज कनेक्ट किया विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड, और S1 को आफ्टर कॉम्प्लीमेंटेड इट इज बेसिकली कनेक्टेड आउट, राइट। अब सिचुएशन क्या बन गया, मेरे पास यहाँ पे ये बेसिकली बन रहा है I2 S0 S1 बार, right? So similarly, what about the I3? I3 is basically उसकी एक इनपुट यहाँ पे रख दी, S0 को भी विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड, so this is basically S0 as it is, this one is S1 is as it is, right? So S1 भी as it is, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो व्हाट हैपेंस, बेसिकली द थिंग इज क्या ये S0 ऐसे कनेक्ट कर दिया, S1 ऐसे ही कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज I3। सो यहाँ पे क्या मिला, S0 S1 और I3। सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कि ये 0 0 है, अगर S0 और S1 0 0 है, सो व्हाट हैपेंस, अगर S0 और S1 0 0 है, सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि आपके पास ये I0 यहाँ पे आएगा इस पहले गेट पे, बाकी सारी जगहों पे मेरे पास 0 0 आएगा। यू कैन वर्क ऑन इट, राइट। अब बाकी तीनों इनपुट पे तीनों आउटपुट 0 हैं, एंड these three outputs are basically going to be connected with these this OR gate की इनपुट बन रही है, और ये तीनों 0 0 है। नाउ what happens, this is it all depends on the फोर्थ इनपुट I0 की है, वो अगर 0 होगी तो मुझे आउटपुट पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि और गेट की यही प्रॉपर्टी है भाई, सारी की सारी इनपुट 0 हो जाएंगी, मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा। एक भी आउटपुट 1 आ जाएगी, आउटपुट पे 1 1 मिल जाएगा। तो तीन इनपुट तो हमने कहा कि ये तो तीनों 0 है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ इनपुट जो कि I0 है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, क्या जी, when S0 is 0, when S1 is 0, then what happens कि मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, Y पे मुझे I0 की वैल्यू। If it is 0, then it would be a 0 at the output. अगर ये 1 है तो 1 मिलेगा, right? Similarly, अगर S0 0 है और S1 1 है, तो अब आप बताएंगे कि ओके यहाँ पे क्या मिलेगा, right? S0 पे 0 मिलेगा, तो obviously what happens कि ओके कौन सा, जब S0 0 था तो ये तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि बेसिकली जब ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो S0 1 हो जाएगा, और S1 तो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। इस स्पेसिफिक सिनेरियो में मुझे बेसिकली अगर S0 की 0 है और S1 की 0 1 है, सो व्हाट हैपेंस कि मुझे आउटपुट पे I1 की वैल्यू मिलेगी, कहाँ पे, Y पे, राइट। क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी की सारी इस OR गेट की इनपुट्स 0 होंगी। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। सिमिलरली इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर एज वेल। सो और 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, आपके पास कितनी सेलेक्ट पिन्स चाहिए, आपको बेसिकली 3 सेलेक्ट पिन्स चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर हम कहते हैं क्योंकि 8 इनपुट्स हैं, सो इट मींस क्या जी, इट वुड बी अ 2 raised to power 3, और इट मींस क्या जी कि ये n की वैल्यू है, एंड दिस इज सेलेक्ट पिन्स कितनी आ जाएंगी, सो सेलेक्ट पिन्स वुड बी there would be 3 select pins, so S0 S1 S2 या जो भी आपने उसका नाम देना, राइट। सो उनकी बेसिस पे आप इन 8 में से कोई भी इनपुट सेलेक्ट करके आउटपुट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो मल्टीप्लेक्सर के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बूलियन फंक्शन को भी मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।